Hello students, good morning. Students of class 12 commerce. Welcome to Pandya Sir's virtual class on macroeconomics, and today we will continue with our discussion, that is aggregate demand. Today's topic of discussion is aggregate demand in a two-sector economy. Earlier in the last class we have already discussed what is aggregate demand and what are different components of aggregate demand and how it is determined in a four-sector economy. But the determination of aggregate demand in a four-sector economy is quite complex and it's not part of your syllabus at 12th class level. But so the syllabus is that aggregate demand in a two-sector economy where the elements or ingredients of aggregate demand are C, that is consumption, plus I, that is investment. Hence, in a two-sector economy, aggregate demand is the sum of consumption plus investment. So, now we will see we will discuss the diagram and its observation and this table. According to this table, this diagram has been drawn, and what does this diagram suggest? Let us see. You can see here, there are four different columns. The first column is level of income, and it is straightforward, going on rising and rising and rising. The second column is consumption expenditure, that is C, and it is also rising. So, what does it suggest? It suggests that consumption is a positive function of income. So, what do we mean by this? Consumption is a positive function of income. That means, as the level of income goes on rising and rising and rising, along with it, the level of consumption also goes on rising and rising. Next, investment, that is I. And it is fixed because it is autonomous investment. And AD is the sum of C plus I. 50 plus 100, that is 150. 75 plus 100, 175, and so on and so on and so on. So, now come to the diagram. So, while we are having the observation, just put a keen eye on the diagram, because in this observation, what we find out in this diagram is the observation. So, it is the observation of this diagram. So, what do we see in the diagram? The first point you can see, C is a positive function of income. C is a positive function of income. As the level of income going on rising and rising, we have represented a level of income along x-axis, and this is 100 level of income. Level of income became 200, 300, 400. So as we move from left to right, the level of income is going on rising. And along with that, what we can see, the consumption expenditure is also going on rising and rising and rising. That's why we say the consumption is a positive function of level of income. The second point is, I is autonomous investment, not affected by the level of income. You can see, when the level of income is 0, the investment was 100, and when the level of income rises to 100, still there is no change and investment is only 100. So, there is no change in the level of investment. Why? Because it is autonomous investment. Now, see, why income is 100 at 0 level of income and why consumption is 50 at 0 level of income, just we need to understand. And here, I would like to use a little Hindi so that the understanding would be clear. अब हम ये पूरा इकोनॉमी का स्टडी कर रहे हैं. अब ये बात बताइए, जब इनकम 0 है, यानी कोई इनकम जनरेट नहीं हो रहा है, लेवल ऑफ इनकम 0, तब भी हमारा बेसिक खर्चे हैं कि नहीं? अगर हम कमा नहीं रहे हैं इसलिए खाना पीना बंद कर देंगे? नहीं कर सकते हैं ना. तो हमारा सर्वाइवल के लिए हमको कुछ ना कुछ तो
मिनिमम खर्च करना ही है, इवन इफ हमको कोई कमाई नहीं हमारा हो रहा है। दैट्स व्हाई कंजम्पशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट अगर कमाई नहीं भी हो रहा है तो कंजम्पशन 50 है, और 50 कंजम्पशन है मतलब कुछ चीजें हम कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ चीजें अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो वो चीज प्रोड्यूस भी हो रहा है, अगर वो चीज प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। दैट्स व्हाई इवन इफ व्हेन द लेवल ऑफ इनकम इज 0, कंजम्पशन इज 50, एंड टू प्रोड्यूस this much of goods and services we need to invest 100 rupees. That's why 100 is the autonomous level of investment, and it has no effect, it is not affected by level of income. Autonomous investment is never affected by level of income, because level of income बढ़े या घटे, हमको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मतलब जो जरूरी चीज जो हम कंज्यूम करेंगे उसको प्रोड्यूस करने के लिए जितना इन्वेस्टमेंट चाहिए वो इन्वेस्टमेंट होगा ही होगा। यानी अगर पूरे देश में कुछ भी कमाई नहीं हो रहा है फिर भी हम 50 खर्च करेंगे, और वो 50 जो खर्च जिस चीज के ऊपर होगा उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम 100 रुपया क्या बोलते हैं इन्वेस्ट करेंगे। That's why investment is 100 and consumption is 50. Where? At a zero level of income. So third point में आइए, AD. AD is the sum of C and I. AD जो ऊपर का कर्व देख रहे हो ये 50 और ये 100, 50 और 100 मिलके 150 हुआ, तो C हो गया 50, I हो गया 100, 100 plus 50 equal to 150. That is AD. Aggregate demand is the sum of consumption and investment. AD is sum of C and I, and its slope is positive. Its slope is positive means what? जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ता जाता है और हमारा एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ता जाता है, यानी देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एडी एंड इनकम लेवल। मोर इज द एडी, more is the income level, because here in level of income is the determining factor. कितना डिमांड होगा, हम कितना चीजों का जरूरत करेंगे वो डिपेंड करता है हमारा लेवल ऑफ इनकम के ऊपर। एंड देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एडी एंड इनकम लेवल। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता जाएगा हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता जाएगा, और कंजम्पशन अगर बढ़ता जाएगा तो हमारा एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज कंजम्पशन इज पॉजिटिव इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। ये पहले से मैं बोल चुका हूं। कंजम्पशन पॉजिटिव क्यों है? कंजम्पशन इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि एट जीरो लेवल ऑफ इनकम कमाई कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर भी हम अपना सर्वाइवल के लिए कुछ चीजें तो कंज्यूम करेंगे, जैसे फूड हो गया, क्लॉथ हो गया, वगैरह वगैरह। तो वो सब के लिए हमको 50 रुपीज कंजम्पशन कर रहे हैं हम, अगर कमान नहीं भी रहे हैं। So ultimately what the formula we developed here, that C, that is consumption, equal to C bar, C is consumption, that is equal to C bar plus B Y। और ये तीनों टर्म का मतलब अच्छे से समझने का कोशिश करिए। C बार मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी C मतलब टोटल कंजम्पशन, एंड C बार का मतलब है ऑटोनोमस कंजम्पशन। सो टोटल कंजम्पशन मतलब एग्रीगेट डिमांड, एंड ऑटोनोमस कंजम्पशन मतलब जीरो लेवल में हम जितना कंज्यूम कर रहे हैं वो हो गया ऑटोनोमस कंजम्पशन। सो कंजम्पशन जानने के लिए हमको C बार दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन के साथ क्या ऐड करना पड़ेगा? बी वाई, दैट इज बी इंटू वाई। और सब जानते हो वाई स्टैंड्स फॉर इनकम, लेवल ऑफ इनकम। सो वाई इज इनकम, ये बी क्या है? दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट एंड टेक्निकल, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। बी को हम बोलते हैं MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे लेटर, बट फिलहाल ये इक्वेशन समझने के लिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दैट इज MPC, जिसको कि हम स्मॉल लेटर B से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या है मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। फिर एक बार यहां रिपीट कर रहा हूं मैं, मार्जिनल मीन्स वन मोर। इसका मतलब है अगर हमारा इनकम 1 रुपया और बढ़ गया, मान लो हमारा इनकम 100 रुपया था, अब 101 रुपया हो गया,
यानी हमारा इनकम 1 रुपया बढ़ा, तो वो 1 रुपया जो बढ़ा हमारा इनकम, उसका कितना हिस्सा हम कंज्यूम करेंगे। हमारा इनकम को क्या करते हैं हम, हमारा इनकम का एक हिस्सा को हम कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन में स्पेंड करते हैं, और एक हिस्सा को सेविंग करते हैं। हमारा इनकम का एक हिस्सा कंजम्पशन होता है, एक हिस्सा सेविंग होता है। तो जो कंजम्पशन होता है वो एमपीसी में यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में आता है, और जो सेव करते हैं उसको हम एमपीएस यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होता है। एंड ये क्लियर है, 1 रुपया अगर हमारा इनकम बढ़ा और मान लो उसका 60 पैसे हम कंज्यूम करना चाहते हैं और 40 पैसे हम सेविंग करना चाहते हैं, इसका मतलब ये जो 1 रुपया हमारा इनकम बढ़ा है उसका 0.6 हम कंज्यूम करना चाहते हैं एंड 0.4 हम सेविंग करना चाहेंगे। सो यहां पर हम बोलेंगे एमपीसी इक्वल टू 0.6 and MPS, that is marginal propensity to save, is equal to 0.4. Hence, always MPC plus MPS equal to 1. Marginal propensity to consume plus marginal propensity to save is always equal to 1. So, अब फिर एक बार कंजम्पशन कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसको हम सी बार दैट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट प्लस बी that is marginal propensity to consume into y income. So अब हम एक बार देख लेंगे, हमारे जो ये एग्जांपल हम लिए हैं, ये टेबल लिए हैं, यहाँ पर ये assumption के साथ हम ये टेबल बनाए हैं कि b that is marginal propensity to consume is equal to 0.5. इसका मतलब हमारा ये टेबल और डायग्राम इस एजम्पशन के साथ बना है कि अगर 1 रुपया हमारा इनकम बढ़ रहा है तो उसका 50 पैसे हम कंज्यूम करेंगे और 50 पैसे हम सेविंग करेंगे। अब ये फॉर्मूला में कहीं भी हम देखते हैं, सपोज इस लेवल पे हम देखते हैं, इस लेवल में देखिए हम C इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई करेंगे। सी दैट इज कंजम्पशन, कंजम्पशन कितना है 100 इक्वल टू सी बार कितना है 50 इंटू बी कितना है, हम 0.5 मान के चल रहे हैं, दैट इज 1/2 इंटू वाई कितना है इनकम लेवल, लेवल ऑफ इनकम यहां पर 100 है, 100 है। अब ये फॉर्मूला के हिसाब से डाला, C दैट इज 100 इक्वल टू सी बार इक्वल टू 50 प्लस B इक्वल टू 1/2, बिकॉज हम एज्यूम किए हैं कि B इज 0.5 1/2 होता है इंटू इनकम y इनकम, और इनकम इस लेवल में 100 होता है। सो 100 इक्वल टू 50 इंटू 1/2 इंटू 100। सर मैं इंटू बोल दिया, यहां सी बार प्लस है, सी बार प्लस 50 इक्वल टू सी बार दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड एमपीसी हो गया हाफ दैट इज 0.5 एंड इनकम हो गया 100। सो ये 200 इक्वल टू 50, सो 50 प्लस 50 इक्वल टू 100। सो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हुआ 100 इक्वल टू 100। सो इस तरह आप ये फॉर्मूला डाल के कोई भी लेवल ऑफ इनकम में कंजम्पशन को आप डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर एक बार रिपीट, C इक्वल टू सी बार दैट इज कंजम्पशन इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इनटू लेवल ऑफ इनकम। सो ये हो गया हाउ टू फाइंड आउट एग्रीगेट डिमांड इन ए 2 सेक्टर इकोनॉमी। एंड हमारे नेक्स्ट क्लास में हम इसको फर्दर डिस्कशन करेंगे। ये काफी एक लंबा चैप्टर है, मेरे ख्याल से 3-4 वीडियो लग जाएंगे। So we have already completed 2 classes related to aggregate demand. So go through the video, go through the books, go through the notes, and if you get any problem, please call me or message me to find a solution. Thank you and have a nice day.